Hello everyone, my name is Sanu Barnas. I am a final year MBBS student at JNMC. Back to my channel. Today I am thrilled to have Dr. Manzoor with us. He is a surgery resident in our medical college. He has secured an All India rank of 840 in NEET PG 2022 in his first attempt. So today he will be sharing his expertise on how to prepare for NEET PG. So sit back, relax and let's learn from him. First of all, congratulations sir. Thank you. My name is Dr. Manzoor Akhtar. I got 840 ranks in NEET PG 2021 and currently I am posted in General Surgery, Department of General Surgery in सर आपने NEET PG प्रिपरेशन कब से स्टार्ट की थी? Actually, I start my preparation from part 1. आइडियली कब से स्टार्ट करनी चाहिए? From my perspective, third year part 1 is the best time for preparation because part 1 has the 3 subjects. It's get cognitive medicine, optha and ENT. Mostly the subjects are covered within 6 months. So rest of the 6 months can be used for the first and second year subject, and in final year only focusing the final year subject. So it's the best time to start preparation as part 1. Sir, as a final year student, how should I prepare? Because हम लोग की यूनिवर्सिटी एग्जाम भी होते हैं और पीजी प्रिपरेशन भी करनी होती है. Actually, final year it's very difficult and hectic for covering all the subjects, and especially there's a lots of tension for final props and also the competitive exam. So what I did in my time, actually I was focusing only the final year subjects in final year, and in part 1 I tried to cover my first and second year subject revision. So during actually you said about the university exams and competitive exam. So first of all we have to identify the difference between the university exam and competitive exam. So what happens in university exams? So they written a topic in exam grossly. In competitive exams you have to know the definite fact. Like side effect of a drug in university exams, you can write them at 5 or 6 points. Whatever you read, you have not read that things. But in competitive exams, you have to know that specific things. So that is the difference. So we have to be specific about the topic. So during final years, what you have to do, you have to identify the topics. What came year and year after, the same topic repeated again and again. So you have to choose that topics, and you have to cover the topics very well, whether you from standard books or from the sources, the online sources you used. So that will be your main motto in final years. First of all, in subject wise, if you choose the medicine, then you choose a particular system, and you have to identify from that system which particular topics are repeatedly asked in your university exams or in your competitive exam. Then you just note down that topic, and then you just prepare the topics very well from your sources. Mostly, whether you choose standard books or whether you choose from. Sir, how much time allotted for each subject? सर क्योंकि फाइनली में ईयर में हमारे मेजर सब्जेक्ट होते हैं, माइनर सब्जेक्ट होते हैं, तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए? देखो final year definitely you never get the time to read the medicine again and again later on your labs. So if you didn't take the medicine later on, so first of all you only get the times for the medicine in your final year times only. So at that time you try to read some of the topics like the Harrison's first 2 or 3 chapters, the symptoms like vomiting, pain, abdomen. So if you read the things from the Harrison's, then it will give extra point in your lateral life when you practice any subject. Whether you took medicine, whether you took surgery, whether in other specialties, you will manage very well future time. So it's very important to read some of the basic things from standard books during final years. What you have to do in final years, final year subject like OBGY is very important for your university exam as well as your competitive exam. Most of the questions, about 40 to 50 questions comes from the OBGY. So you have to very well prepared about the OBGY. You don't miss the OBGY. Secondly, surgery. Pediatrics is minor subject, it comes under minor subject.
and medicine also you don't have to give that much weightage in your competitive exam, but it definitely gives a chance, extra age for practicing as a doctor in your future life. So फाइनल ईयर में सिर्फ अगर फाइनल ईयर सब्जेक्ट ही कवर करना चाहते हो तो क्या करना है, पहले जो सब्जेक्ट मेजर सब्जेक्ट है 3 सब्जेक्ट उसको कवर कर लो, उसके बाद माइनर सब्जेक्ट के लिए तुम टाइम निकालो। मेनली क्या करना है, वो पर्टिकुलर टॉपिक जो पहले मैंने बता चुका था वो टॉपिक को आइडेंटिफाई करो, OBGY से पहले कवर करो उसको अच्छे से 2-3 बार, जितना बार हो सके उसको कवर कर लो। उसके बाद मेडिसिन को करो और सर्जरी को करो। उसके बाद जो टाइम मिलेगा उसमें तुम बाकी जो माइनर सब्जेक्ट है लाइक पिट्स पढ़ो, पिट्स, साइकियाट्री, रेडियो, डामा और एनेस्थेसिया, ब्रेडियोलॉजी टू सम एक्सटेंट उसको कवर कर लो। इसमें ज्यादा फोकस इतना नहीं करना है, अंडरग्रेड्स में भी उतना ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी 8 to 10 क्वेश्चन आता है, वो भी पर्टिकुलर टॉपिक से, तो वो ज्यादा से ज्यादा मतलब कुछ पर्टिकुलर एरिया ही है जहाँ से हर साल एक ही क्वेश्चन आता है, तो उसी टॉपिक को जस्ट फोकस करना, तो उसी से वो हो जाता है। हम लोग को हर सब्जेक्ट को पढ़ना है, सिर्फ मेडिसिन को ही टाइम नहीं देना है। मतलब फाइनल ईयर में बहुत होता है ना कि मेडिसिन ही पढ़ते रह जाते हैं। एकदम से नहीं, अंडरग्रेड्स में सिर्फ अगर मेडिसिन में तुम फर्स्ट फाइनल ईयर में थोड़ा बहुत टाइम दे रहे हो तो ठीक है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेडिसिन का इतना वेटेज है नहीं, क्योंकि वो हर टाइम अलाइड सब्जेक्ट के तरफ क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें मोस्टली क्या होता है, कि अगर तुम बहुत ज्यादा मेडिसिन में टाइम दोगे तो मोस्टली जो मेजर सब्जेक्ट, मेजर चार का क्वेश्चन तुम मिस कर जाओगे, मिस आउट कर जाओगे। स्पेशली OBGY से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तुम अगर उसी टाइम OBGY में दोगे तो डेफिनेटली तुम्हारा रैंक बहुत इम्प्रूव हो जाएगा, स्पेशली कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ एग्जाम से। तो you have to give the time in 5 subjects you don't miss, like OBGY, pathology, microbiology, pharmacology and cognitive medicine. This 5 subjects should be covered very मतलब in depth तुम्हें cover करना चाहिए, otherwise rank will be definitely मतलब खराब हो ही जाएगा इस 5 subject। फर्स्ट एंड सेकंड ईयर क्योंकि अब नेक्स्ट एग्जाम भी आ रहा है। हाँ, definitely. Actually, what happened nowadays from FOMO point of view, if you are missing out from peer pressure, all the student एकदम से सही से है क्या सब्जेक्ट है, क्या मेडिकल प्रोफेशन है, कुछ भी नहीं पता है, लेकिन सब ले रहा है, तो वैसे कोई एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म ले रहे थे, तो ये बहुत गलत है, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड ईयर यू हैव टू रीड द बेसिक बुक्स एंड बेसिक शुड बी स्ट्रांग, अदरवाइज यू नेवर बी अ गुड डॉक्टर। मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है अगर तुम्हारा बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो। हाँ, मतलब एग्जाम तो पास ही हो जाएगा वो अल्टीमेटली कोई ना कोई वे पे। तो फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में तुम्हें फोकस करना ही है, लाइक फिजियोलॉजी से तुम गाइडाउन से पढ़ो, या ग्रेज एनाटॉमी पढ़ नहीं सकते हो, लेकिन जो फोटो है लाइक पर्टिकुलर वो फोटो ग्रेज एनाटॉमी या नीटर से, एटलस से वो फोटो देखो, वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम एप्स फॉलो कर रहे हो तो ऐप से तुम वो पर्टिकुलर फोटो कवर नहीं कर सकते हो। लाइक तुम लिफिन कॉट से सिर्फ मेटाबॉलिज्म पॉइंट ऑफ व्यू वहां पर जो साइकिल के फॉर्म में दे रहे होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिक के लिए, या रॉबिन्स के लिए जो जनरल पैथोलॉजी, वो अगर मिस आउट कर दिया तो इन फ्यूचर तुम मेडिसिन करो या सर्जरी करो, बहुत ज्यादा मिस होगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में तुम्हें एस्पिरेंट के तौर पर नहीं सोचना है, फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में तुम्हारा मेन टारगेट रहेगा बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना। बेसिक जब स्ट्रॉन्ग हो जाएगा फिर पार्ट 1 से दैट्स द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट थिंकिंग एज एस्पिरेंट। पार्ट 1 से तुम सोचने लगोगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी, यूनिवर्सिटी एग्जाम के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी तुम कैसे अच्छे करोगे। लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड ईयर तुम्हारा मेन टारगेट रहेगा बेसिक स्ट्रॉन्ग करना। नेवर एवर टेक FOMO or peer pressure, get the peer pressure to taking some coaching center or some of the shortcut methods. क्योंकि most of time क्या होता है, एग्जाम में आए हो, अरे पढ़ना नहीं है, most of सीनियर्स ऐसा होता है, कुछ पढ़ना नहीं है, कुछ नहीं है, सब पास कर देते हैं। लेकिन मैं बोल रहा हूँ 2 or 3 years later on तुम्हें पता लगेगा कि नहीं, पढ़ना ही है, क्योंकि हमारा यहाँ पर कोई शॉर्टकट होता नहीं है। शॉर्टकट करके तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। अगर कुछ अच्छा करना है तो तुम्हें एफर्ट करना ही है, क्योंकि यहाँ मोस्टली फैक्ट बेस्ड होता है। तो फैक्ट तुम्हें अगर पता करना है तुम्हें एफर्ट देना ही होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। मतलब फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में हम लोग को अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करने हैं, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना है, कोचिंग अवॉइड करना है। फर्स्ट एंड सेकंड ईयर फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव इट्स नॉट गुड टू टेक इन कोचिंग सेंटर्स बिकॉज दैट मेक अस
कोई भी स्टैंड बुक्स हम लोग तब फॉलो नहीं करते, ओनली कोचिंग सेंटर के ऊपर वो जो नोट्स दे देगा वही नोट्स को फॉलो करना स्टार्ट करते हैं। तो उसमें बेसिक्स जो होता है वो बेसिक्स बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, क्योंकि वो अगर वीक होता है तो अभी एग्जाम तो पास ही कर लेंगे, एग्जाम पास ही हो जाता है, सबका होता है, सभी हो जाएगा, लेकिन बाद में दिक्कत हो जाता है जब क्लिनिकल पोस्टिंग में बहुत ज्यादा वीक पॉइंट आ जाता है। सर आपने रिसोर्स कौन सा यूज किया था? देखो, मैं तो फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर मोस्टली वही जो पैटर्न था स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने की कोशिश किया था। ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ कंप्लीट कर लिया, पॉसिबल भी नहीं है। कोशिश किया था 85% कवर करने की कोशिश किया था। तो उसके बाद पार्ट 1 से सोचने लगा कि हाँ थोड़ा बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी सोचना है। तो उस टाइम जो पढ़ा था जो ही नोट्स, उसी नोट्स का थोड़ा बहुत हैंड रिटन नोट्स बनाने के लिए कोशिश किया था, हैंड रिटन नोट्स बनाया था। और उसके बाद पार्ट 1 में पहले 6 मंथ वही कंप्लीट मेडिसिन वक्त था और ENT के लिए दिया था, बाकी 6 मंथ जो फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट था उसका जो पढ़ा था वही टॉपिक से नोट बनाने की कोशिश किया था। फिर फाइनल ईयर में जाकर ओनली फाइनल ईयर सब्जेक्ट वही मेन था फोकस। तो बेसिकली मैंने सर्जरी जो बेसिक पोर्शन है, जनरल सर्जरी का पोर्शन और ट्रॉमा का पोर्शन, वो बेलियन लैब से पढ़ा था। बाकी जो रेस्ट ऑफ टॉपिक सर्जरी से पढ़ा था। और सर मेडिसिन से मैं पहले से ही मतलब न्यूरो में एक अलग इंटरेस्ट था, तो CNS का कुछ टॉपिक और जनरल सर्जरी और बेसिक साइंस सिम्टम्स करके जो हेल्थ साइंस में पहला कुछ टॉपिक है 3-4 चैप्टर से, उस चैप्टर को हेल्थ साइंस से पढ़ा था, बाकी डेविडसन से कवर किया था। तो और बाकी जो पेड्स था वही घाई से पढ़ा था और OBGYN GC और कुछ नोट्स था साक्षी मैम का, वो नोट्स था, उसके नोट्स से पढ़ा था। बाद में जो माइनर सब्जेक्ट था, माइनर सब्जेक्ट कुछ नोट्स से ही मोस्टली कवर किए थे। तो वो और बाकी मैंने कोचिंग स्टार्ट किए थे इंटर्नशिप में। तो इंटर्नशिप में बेसिकली मेरा फोकस था जो क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस करने के लिए। तो वही क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस करने के लिए मैंने कोचिंग लिया था इंटर्नशिप के टाइम पर। और रिसोर्स तो मैंने जो पहले हैंडमेड नोट्स था वही। इंटर्नशिप में हम लोग पढ़ाई कैसे मैनेज करें? क्योंकि इंटर्नशिप में तो 3 सब्जेक्ट में पढ़ना बहुत डिफिकल्ट है, मेरे लिए भी था, सबके लिए होता है। वो 3 मेजर सब्जेक्ट पोस्टिंग जब चलते हैं, मेनली मेडिसिन, सर्जरी और गैनी। इस 3 महीने के छोड़कर 3 सब्जेक्ट के छोड़कर बाकी सब्जेक्ट में तो हम टाइम मिल ही सकते हैं। तो ओवरऑल अगर उस 3 महीने में 1 महीना भी निकल सकते हैं पढ़ने के लिए और बाकी लगभग 6 to 7 months, तो टोटल 8 months अगर हाथ में है तो 240 days। तो ओवर 240 days में फर्स्ट रीडिंग फॉर लॉन्ग सब्जेक्ट इफ यू गेट द 8 days फॉर 1 सब्जेक्ट, सो लगभग 10 लॉन्ग सब्जेक्ट में 80 days के आसपास लग जाएगा। और बाकी जो शॉर्ट सब्जेक्ट है 9 सब्जेक्ट में तो 4 या 5 days में देने से 30-35 days में कंप्लीट हो जाएगा। तो टोटल 110 days में हम लोग फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट कर सकते हैं। फिर सेकंड रीडिंग में हाफ टाइम में हमें कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट रीडिंग 110 अगर हो गए तो सेकंड रीडिंग ट्राई करना है 55 days 50 days के अंदर कवर करना है। फिर थर्ड रीडिंग में उससे भी हाफ टाइम में कवर करने की कोशिश करना है, तो लाइक 25-20 days में। तो लास्ट में जो 1 महीना बचेगा उसमें 1 महीने के अंदर सबसे वीक पॉइंट कौन सा है, वो वीक सब्जेक्ट होंगे कौन से, वो आइडेंटिफाई करके उसको रिवाइज करना है। और जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट उसको जस्ट ब्रश अप करना है, ज्यादा फोकस नहीं करना है। और लास्ट जो 10 days रहेगा उसमें जो मोस्ट वोलेटाइल थिंग्स जैसे होते हैं, जैसे जीन, क्रोमोसोम, मतलब ऐसे क्वेश्चंस आते ही है, ऐसे पर्टिकुलर फैक्ट, तो वो जीन कौन सा जीन है, कौन सा क्रोमोसोम नंबर में है, कौन सा म्यूटेशन है, ये जो पर्टिकुलर टैबलेट फॉर्म में आते हैं, कौन सा ट्रांसलोकेशन से, तो वो रिवाइज करना है उस टाइम, या डेवलपमेंटल माइलस्टोन, ये सब वगैरह उस टाइम ही पढ़ना है। प्लस 7 to 8 days में वो और एक बार रिवाइज करना है। तो यही अगर पैटर्न फॉलो करोगे तो आई थिंक इट विल गुड फॉर द गिविंग यू गुड हैक। सर डेली कितने आवर्स पढ़ते थे आप? डेली देखो अंडरग्रेड टाइम में तो वही एक कंसिस्टेंसी बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर टाइम तो ये होता नहीं है, वी ऑल ह्यूमन बीइंग्स, सो वी ऑल हैव टू डिस्ट्रैक्शंस। तो एटलीस्ट ट्राई करते थे, अगर कोई भी दिन कुछ भी नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट 3 to 4 hours तो कोशिश ही करना था। फिर जब इंटर्नशिप फेज में था, इंटर्नशिप फेज में माइनर सब्जेक्ट जब चलते थे उस टाइम, तब तो 8 hours डेली देने की कोशिश ही था, जब कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने लगता था। तो 8 hours उस टाइम देना ही होगा। उससे पहले हर दिन अगर 3 to 4 hours दे जाएगा तो enough, more than enough to get a good How rank. much time did you spend on solving QBank? QBank is very important because QBank gives clarity where you have to lacking, you have to improve. जैसे कि मान लो तुम
कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन बैंक तुम सॉल्व कर रहे हो तो वहाँ कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन तुम रॉन्ग कर रहे हो, तो वो क्वेश्चन क्यों रॉन्ग हो रहा है उससे एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए वो बहुत ज्यादा मायने रखते हैं जो क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना। तो मेरा जो स्ट्रेटेजी था, हर दिन जो पढ़ रहा हूँ, जब सब्जेक्ट कवर हो गए थे इंटर्नशिप में, जब रिविजन कर रहा था, तो उस टाइम मैंने कस्टम मॉड्यूल्स ले लेते थे, या जीटी होता था या मिनी टेस्ट जो भी होता था सबको अटेम्प्ट करते थे, मतलब ऐसे कुछ मिस आउट नहीं थे। तो उस टाइम एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा होता था ये जहाँ पढ़ने के लिए और अच्छा नहीं लगता है, ये मतलब जब रिविजन करने के लिए और मन नहीं लग रहा है, ये बर्नआउट हो गए और नहीं पढ़ना है, तो उस टाइम में क्या करते थे, कोई कस्टम मॉड्यूल ले लिया, मोस्टली ये खाने के बाद होता था, तो उसी टाइम मैंने कस्टम मॉड्यूल ले लेते थे, फिर उसको सॉल्व करता था। सॉल्व करने के बाद जो रॉन्ग क्वेश्चन है उसको फर्स्ट फोकस करते थे, वो क्यों रॉन्ग हुआ उसको एनालिसिस करना। जैसे कि अब वो एकदम से नया टॉपिक है मेरे लिए, तो मुझे लगता था जब मेरा नोट्स में या मेरा जो सोर्स है उसमें कुछ ऐड ऑन करना है, या वो पर्टिकुलरली मुझे नोट्स में भी है, मुझे याद भी है, लेकिन रिविजन गैप के इसीलिए मैंने रॉन्ग किया, तो मुझे रिविजन में और ज़्यादा फोकस करना होता था उस पर्टिकुलर टॉपिक में उस टाइम। या ऐसा लगता था जो कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा टेंस हो जाता था, तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगता था, तो इस वजह से कभी कुछ क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता था, तो उसको भी ओवर थिंकिंग या अंडर थिंकिंग की वजह से भी कभी कभी हो जाता था। तो ये जो 3-4 डोमेन है, ये वेदर आई हैव लैक इन सोर्स या लैक इन रिविजन्स और आई एम डूइंग ओवर थिंकिंग, अंडर थिंकिंग, ये आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेन एग्जाम में ये गलती नहीं होना चाहिए, तो वो क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने से ही पता लग सकते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर दिन मैंने अगर टोटल 8 आवर्स पढ़ा हो तो 2 घंटा 3 घंटे तो क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना। जीटी देना कब से स्टार्ट दें? जीटी देना यूजुअली जीटी तो 8 सब्जेक्ट, अगर मेजर सब्जेक्ट जो 5 सब्जेक्ट बोला था जो मिस आउट नहीं करना है, उसके साथ साथ अगर फर्स्ट ईयर का 3 सब्जेक्ट बेसिकली तुम्हें पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, कॉग्निटिव मेडिसिन और ओबीजी वही, और साथ में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, ये अगर कवर हो गए तो तुम जीटी देना स्टार्ट कर दो। फिर धीरे धीरे तुम्हारा रैंक कुछ भी हो, रैंक में फोकस नहीं करना है, जस्ट क्वेश्चन में फोकस करना है, सब्जेक्ट में फोकस करना है। जो सब्जेक्ट तुम कवर किए हो उसमें तुम कितने अच्छे कर रहे हो, ये उतने उस, और बाकी जो सब्जेक्ट है वो धीरे धीरे कंप्लीट करते जाओगे, तुम्हारा रैंक भी इंप्रूव होते जाएगा। और जो कॉम्प्लीटेड सब्जेक्ट है उसमें जो गलती है उसको जब तुम एनालिसिस करोगे कि कहाँ घटती है तुम्हारा रिविजन में, या नया टॉपिक है, या तुम्हारे लिए वो एकदम से सोच ही नहीं है उस टॉपिक के बारे में, तो वो जब इंप्रूव करते जाओगे तो रैंक कैसे इंप्रूव करते जाएगा। तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, तो जीटी मिस आउट नहीं करना है। जैसे रैंक खराब आ रहा है तो जीटी मिस कर दो, या जीटी नहीं दो, या मोटिवेशन मतलब अनमोटिवेट हो रहा है तो इसीलिए नहीं दो, ये नहीं करना है। जीटी यू शुड अटेंड टू जीटी। सर सबसे मेन सर कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें? हाँ, ये बहुत सारे सबके साथ होता है, ये एक फेज आता है जब लगता है ये और नहीं हो पाएगा मेरे साथ, शायद तो मैं अंडर प्रिपेयर्ड हो, मैं प्रॉपर प्रिपरेशन, तो मैं अभी भी मैं रैंक करने के बाद भी और फिर से अगर मुझे कोई एग्जाम देने के लिए, तो मुझे अभी भी लग रहा है मैं अंडर प्रिपेयर्ड हूँ मुझे। तो ये कभी फीलिंग्स नहीं आएगा, किसी के साथ नहीं आते हैं। ये प्रॉपर प्रिपरेशन हो गए, पूरा 100% हर एक सब्जेक्ट को कवर कर लिया, फुल प्रिपरेशन के साथ फिर एग्जाम दे, ये कभी पॉसिबल नहीं है, ये रियलिटी से बहुत दूर है। तो तुम्हें इसमें फोकस नहीं करना है। 80 to 85% अगर एक सब्जेक्ट का कवर है तो मोर देन एनफ, उसको छोड़ना है। तो कंसिस्टेंसी में क्या दिक्कत होता है, यही दिक्कत हो जाता है जब होता नहीं है, एक फोमो आ जाता है, पेयर प्रेशर हो जाता है, उसके वो कवर कर लिया, ये सब्जेक्ट हो गया उसका, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा रैंक कितना खराब हो रहा है, फिर कंसिस्टेंसी लॉस्ट हो जाता है, या मेरा टारगेट जस्ट फुलफिल नहीं हो रहा है, तभी हम ट्रैक से ट्रैक डाउन हो जाते हैं। तो यही जस्ट हर दिन खुद को बोलते रहते हैं जी ठीक है चलो हो जाएगा, कर ही लेंगे, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, रिलीज कर दिया तो मतलब पीछे तो निकल ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। यही खुद को मोटिवेट करना है हर टाइम। ऐसा नहीं है तुम बाहर इसको, और जो तुम्हारा फ्रेंड सर्कल है या एक ही साथ प्रिपेयर कर रहे हो उसके साथ भी जब तुम बात करोगे तब और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, उसको भी लग रहा है या अंडर प्रिपेयर्ड है, या तुम्हारे साथ में जो अच्छे रैंक कर रहा है तुम्हारा फ्रेंड ही है जीटी में या टेस्ट में, उसके साथ बात करोगे तो उसको भी लगेगा कि वो अंडर प्रिपेयर्ड है। तो उस टाइम तुम फिर से एक कंसिस्टेंसी फेज में आ जाओगे, फिर ट्रैक में आ जाओगे, ठीक है चलो कर लेते हैं, उसका भी तो ऐसे नहीं है वो अच्छा कर रहा है तुम्हें भी कर लो। अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो डिस्ट्रैक्शन तो कभी कंप्लीट जीरो नहीं होगा, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, वी ऑल हैव द डिस्ट्रैक्शन। मैंने पहले भी बोला था डिस्ट्रैक्शन मेरा भी था, सबका होता है। तो you have to note down your traction force, your distraction force. Then what are
your distraction. Just note down in the page, paper, and then try to cut down that distraction post. Never try to जो मतलब complete zero distraction से ऐसे मत सोचो. Just उसको घटाने की कोशिश करो. जो कम हो सकते वो distraction post को, attraction post को ज़्यादा फोकस करके distraction post को just cut down करने की कोशिश करो. ऐसा नहीं है पूरा distraction free human beings हो गए. वो possible नहीं है. वो आइडियाज हम छोड़ दें. पोस्टिंग्स को कैसे अटेंड करें? तो वो moreover we all finally we all want to be good doctors. So for being a good doctor, clinical posting अटेंड करना बहुत ज़्यादा जरूरी है. ये कभी मिस आउट नहीं करना है तो किसी के लिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे वही तुम्हें स्ट्रेंथ देंगे. क्योंकि ये जो एग्जाम रैंक कॉलेज ये तुम्हें एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म देगा, और इस प्लेटफॉर्म में अगर तुम्हें परफॉर्म ही नहीं करना आता है तो उसका कोई फायदा नहीं है. ये तुम्हें प्लेटफॉर्म मिल गया लेकिन तुम्हें पता नहीं है कैसे पेशेंट असेस करना है, क्या देखना है, तुम्हें क्या करना है, तो एंड ऑफ द डे तुम्हें वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. एज ए डॉक्टर वाला फीलिंग्स नहीं आएगा. तुम थियोरेटिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा है लेकिन प्रैक्टिकल फील्ड में तुम कुछ नहीं कर पा रहे, तो इसमें तुम डिमोटिवेट हो जाओगे. क्योंकि एंड ऑफ द डे हमें सबका वही टारगेट है अच्छे डॉक्टर बनना है. तो ये अच्छे डॉक्टर तुम्हें तभी बनेगा जब तुम्हें प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छा होगा. अगर सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज है तो तुम्हें प्लेटफॉर्म नहीं है, उससे भी नहीं होगा. क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली अच्छे हो लेकिन तुम्हें पर्टिकुलर वो प्लेटफॉर्म ही नहीं है जहाँ तुम्हें परफॉर्म करना है, तब भी अच्छा नहीं. तो तुम्हें बैलेंस होना चाहिए. लेकिन अगर दोनों के अंदर ऑप्शन दिया जाएगा, ये तुम प्रैक्टिकल या थियोरेटिकल कौन सा साइड में जाओगे, तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर द प्रैक्टिकल नॉलेज. एंड प्रैक्टिकल नॉलेज ओनली यू विल गेन फ्रॉम द क्लिनिकल पोस्टिंग. मतलब क्लिनिकल पोस्टिंग अटेंड करना ही है. मतलब एनी हाउ तुम्हें वो मिस करना ही नहीं. अटेंड करते थे आप? हाँ, लेक्चर क्लास तो कभी कभी बांग तो बहुत किया. क्योंकि एक्चुअली लेक्चर क्लास ज़्यादा मतलब कोई भी स्टैंडर्ड कॉलेज में भी उतना अच्छा होता नहीं. कुछ सारे पर्टिकुलर कुछ टीचर है बहुत अच्छे हैं जो बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जैसे स्लाइड बता कराते हैं वही सीख के होते थे. तो वो उसमें क्या होता है, भाग तो होता है. तो अगर प्रैक्टिकल थियोरेटिकल क्लास अभी बहुत ज़्यादा मिस की, ऐसा नहीं जैसा हर एक प्रैक्टिकल क्लास, लेकिन थियोरेटिकल क्लास छोड़ करके प्रैक्टिकल क्लास जो होता है वो सब अटेंड चाहिए था. मैंने एक भी मिस नहीं किया. तो थियोरेटिकल क्लास वो डिपेंड कर रहा है तुम्हें कैसे लग रहा है, तुम्हारा क्या सा परसेप्शन से वो पर्टिकुलर क्लास से कैसे गेन हो रहा है, उसके ऊपर तुम डिपेंड करके बंक कर सकते हो. ऐसा नहीं है बंक कर रहे हो मतलब बहुत ज़्यादा बुरा कर रहे हो. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ये तुम उस टाइम को अच्छे से अगर तुम बाकी गाँव में बाकी सब्जेक्ट में या प्रिपेयर कर सकते हो तो बड़ा गुड. ऐसा नहीं है तुम बांक करके सो गए क्या, बांक करके घर में जाकर नेटफ्लिक्स देखते हुए, ऐसा नहीं चलना. ऐसा नहीं करना है. तब तो बेटा थियोरेटिकल क्लास अटेंड करना है जो तुम घर में बैठ करके, या अगर घर में कुछ प्रोडक्टिव कर सकते हो तो वेल एंड गुड. तुम क्या होते थे यूनिवर्सिटी एग्जाम में? हाँ, वही अराउंड 70-73 का फ्लैक्चुएट करते हैं. नहीं, टॉपर्स नहीं. मेरा टॉपर्स को तो बहुत ज़्यादा वो होता था, 80% के आसपास मिलते थे उसे. सर, एडवाइस फॉर पीजी एस्पिरेंट्स और फॉर जूनियर्स? देखो, there are thousands of way for success, but कुछ चीजें होता है जो फॉलो करने से मतलब वही अल्टीमेटली फेलियर बन जाते हैं लोग. तो वही चीज 4-5 थिंग्स है बेसिकली जो करना नहीं चाहिए. ये जो बहुत ज्यादा होता है, एक फोमो हो जाता है या पेयर प्रेशर हो जाता है. बहुत सारा ग्रुप होता है जहाँ पर हर टाइम कुछ रिसेंट अपडेट्स, कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग्स लेकर डिस्कशन करते हैं. तो उसमें फोकस नहीं करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि वो तुम्हारा रैंक कोई भी वे में इम्प्रूव नहीं करेगा. मैं अभी भी बता रहा हूँ, एग्जाम देने के बाद तुम्हें भी पता चल जाएगा. जो कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग्स या न्यू कोई पर्टिकुलर टॉपिक्स आ रहे हैं, अपडेटेड टॉपिक्स, उसमें फोकस नहीं करना है. दूसरा चीज, कभी कभी हम लोग डिमोटिवेट होकर जीटी मिस करते हैं. तो नेवर स्किप अ जीटी. ऑलवेज ट्राई टू गिव द मतलब जो टाइम में आना है जीटी उसी टाइम में देने की कोशिश करना है. और लास्टली जो ऑलवेज ट्राई टू रिवाइज एंड गिव द टेस्ट. तुम जितना रिवाइज करोगे, जितना टेस्ट करोगे, उतना ज्यादा रैंक इंप्रूव करेगा, उतना ज्यादा रैंक अच्छे हो. इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं. और एक टॉपिक के लिए मल्टीपल रिसोर्स का कभी यूज मत करो, क्योंकि वो एंड ऑफ द एग्जाम में कभी फॉलो ही नहीं कर पाओगे, वो मिस आउट हो जाएगा. तो बेटर एक टॉपिक के लिए पर्टिकुलर रिसोर्स से नहीं स्टिक रहना है. कि अगर फॉलो करोगे तो अच्छा तो रैंक हो जाएगा. सबसे अच्छी चीज है कि इतना प्रेशर मत लो, अच्छे से पढ़ाई करो, हो ही जाएगा, सबका हो जाता है. तो भी हो जाएगा.
Thank you so much, sir. And if you like this video, please do like, share and subscribe to my channel. And don't forget to leave your comments and questions below.